So as they say, success is not final, failure is not fatal. It is a courage to continue that counts. Good evening and a very, very warm welcome to each and every student on SuperGrads YouTube channel on this D-Day, day for which you waited for years, perhaps for months. And today we all are gathered over here. The best faculty team of SuperGrads is gathered over here to give you what's in expectation. A very warm welcome, Anil sir. A very warm welcome, Brinda ma'am. And today we are going to do anatomy of IPMAT Indore 2023 and live. Yes, we kept students waiting for long because we wanted to come with something that is really very powerful. So let's start with level of difficulty. Anil sir, kaisa tha exam? Was it difficult overall? I think you are on mute, sir. Yeah, level of difficulty अगर हम देखें like last year के comparison में English student said last year से भी आसान आया था and MCQ was almost similar lines, right? And short answer comparatively difficult बच्चों ने बोला था. Okay, Brinda ma'am, according to you, English section कैसा रहा? I mean, level of difficulty wise. Rahul, the students always say that IPM surprises them. कभी भी बच्चे IPM का इंदौर का पेपर लेकर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है. जैसे लास्ट ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इस साल दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग द पेपर टू बी दैट इजी. इन फैक्ट इफ आई कोट द वर्ड्स ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैम मॉक्स जो आपने दिए थे उसके बाद ये पेपर मक्खन था. अच्छा. So they were like, yes, कहते मैम SuperGrads के मॉक्स लिखने के बाद ये पेपर कोई लिखेगा तो वो सिर्फ हंस के और खुशी खुशी बाहर आएगा. खुशी those were the words. Yes, so easy to moderate. So I think सबसे पहले IPM मास्टर सीरीज के पैर छुके गए होंगे. True. All right. Agreed. Okay, moving on from here. Good attempts, because you know this is something which most of the students who really want to get inside IIM Indore would be eyeing at today. So Anil sir, according to you, good attempts. जो आपने नंबर दिया क्यों दिया है? So screen पे सबको visible है. Quantitative aptitude short answers में 9 10. Why? Yeah, actually, Rahul, जब स्टूडेंट से बात की, right, टेक्स्ट पे, कॉल पे, right, so they said कि सर 2-3 क्वेश्चंस वो डायरेक्ट, right, काफी क्वेश्चंस तो हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है और मॉक से भी क्वेश्चन सीधे आए हैं, right, 2-3 क्वेश्चंस वो डायरेक्ट. बट जो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा शॉर्ट आंसर मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में गया था, वो था 3 क्वेश्चंस के बाद कौन बच्चा उन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाता है. और 2-3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था, 2-3 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन मिलाकर फिर एक क्वेश्चन डेवलप किया गया था, ऐसे क्रिएट किया गया था, राइट. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं थे आफ्टर 2-3 क्वेश्चंस, राइट. सो दैट इज वे. उसके बाद जो बच्चा 3 क्वेश्चन के बाद जो अटेम्प्ट कर रहा है और 9-10 तक जा रहा है, राइट, विद जस्ट 1 रॉन्ग और नो रॉन्ग्स, तो वो मतलब बहुत इट्स अ विनिंग स्ट्रीक फॉर हिम. So that was for short answer. 9 to 10 is a attempt which can be अगर बच्चा करता है so एक बहुत अच्छा स्कोर होगा and उसको फाइनल एडमिशन दिलाने में हेल्प करेगा. 9 to 10 अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं. MCQ में 18 to 20 इस बार इसलिए कह रहे हैं कि जो आपका DI सेक्शन था, राइट, DI का जो पार्ट था, एक क्वेश्चन था 5 क्वेश्चंस का, वो काफी डुएबल था अगर आपने थोड़ा सा भी उसको ध्यान से पढ़ा एंड जस्ट 2 मिनट भी आपने सोचो कैसे करना है तो 2 मिनट के अंदर वो स्ट्राइक कर रहा था, है ना. बट प्री कंसीव नोशन के साथ आप गए हो कि मुझे तो DI नहीं करना है, राइट, आई एम नॉट अ DI पर्सन, तो आप उसको स्किप करोगे. अदरवाइज जो ओपन माइंड से जिसने भी अटेम्प्ट किया DI को, तो वो 5 क्वेश्चन 20 नंबर सीधे बच्चों को वैसे ही मिल रहे थे. तो 18-20 तो मतलब बनता है, एक गुड अटेम्प्ट में ही जाएगा, है ना, विथ जस्ट 1 or 2 wrongs overall. What is this, ma'am? 38 to 42? I mean, don't you think it's too high? It is Rahul, but considering the fact कि जो पहला सेक्शन है वर्बल एबिलिटी का, which is based on reading comprehension passage, तो वो बच्चों के लिए काफी आसान था. So the passages were simple and उस पे based जो questions थे, except for 2 to 3 questions out of 12 questions, the kids said कि answers लगभग direct थे. Okay, process of elimination was there, लेकिन फिर भी थोड़ा भी अगर आपने ध्यान से रीड किया है और आप ऑप्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो तो आंसर्स निकालना मुश्किल नहीं था, एक्सेप्ट फॉर जस्ट 2 to 4 क्वेश्चंस मैक्स. तो आउट ऑफ 12 8 क्वेश्चन आसान लगे बच्चों को, डुएबल लगे. सेम गोज फॉर द अदर सेक्शंस ऑफ द पेपर. लाइक ग्रामर के लिए तो दे वर लाइक कि करे हुए कॉन्सेप्ट्स थे,
तो सिर्फ टिक लगाना था बच्चों को, ऐसा लगा। एंड फिलर्स के जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन थे, दे सेड देयर वर सर्टेन ऑप्शंस व्हिच वर परफेक्ट मैच फॉर सर्टेन ब्लैंक्स। तो उस हिसाब से अगेन मेथड ऑफ एलिमिनेशन से वो आसानी से मार्क कर पाए। सो सेम गोज फॉर ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ द पेपर। इवन जो पैराजम्बल सेक्शन होता है, जो कि सबसे ट्रिकी सेक्शन माना जाता है, जिसमें बच्चों को आंसर टाइप करना होता है और ऑप्शंस भी नहीं होते, एंड अगेन नेगेटिव मार्किंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है, वहां पर भी सेंटेंसेस वर शॉर्ट एंड ट्रिकी थे। लेकिन बिकॉज दे फॉलोड अ सर्टेन लॉजिकल पैटर्न, द किड्स फेल्ट कि 5 में से 2 से 3 तो वो कर सकते थे, उनको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, बच्चे अगर इस पेपर में इतने क्वेश्चंस उन्हें करने ही चाहिए टू बी इन द सेफ जोन। तो 38 से 42 is a good attempt with at least 90% accuracy 90%. in the verbal ability section of this paper. Yes. All right, moving on, highlights. And I think overall highlights, I'll insist Anil sir to say something. He has given some points over here and are visible on the PPT. लाइक हम लोग का एक सर 5% हम लोग रखते हैं कि यार कुछ पैटर्न इंदौर है, शायद कुछ चेंज कर दे पैटर्न, राइट? सो रहता है थोड़ा सा, राइट? सो 5% हमने रखा था। 95% हमने कहा था कि यार बहुत अच्छा पैटर्न ऑलरेडी सेट हो गया है 2022 में। 15, 30, 45 का एक बहुत अच्छा उन्होंने ऑलरेडी पैटर्न सेट किया, तो इट शुड नॉट चेंज, दे शुड नॉट चेंज, राइट? लास्ट जो मिनट्स टिप्स थी उसमें भी मैंने कहा था, एंड यही चीज निकल के आई है। तो फर्स्ट हाईलाइट तो ये कि भाई पैटर्न बिल्कुल सेम था जो लास्ट ईयर पैटर्न था 2022 का, 2022 का, बिल्कुल सेम था, नो चेंजेस। 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, राइट? 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू इन मैथ्स एंड वर्बल इज 45। रेशियो जैसा कि अपनी बात होती है 1:2:3, तो वही सेम इन्होंने रखा। एक चीज हाईलाइट मैं कहना चाहूंगा कि अगले साल जो बच्चे अटेम्प्ट करें, राइट, ऐसा कुछ अच्छे बच्चों के साथ भी हो गया था, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलते हैं हमेशा ध्यान से पढ़ो, राइट? एंड ये सही बात भी है, किसी भी एग्जाम में इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए। बट अगर इंस्ट्रक्शन 2 पेज के इंस्ट्रक्शन थे, पेज 1, पेज 2, ऐसा कई बच्चों ने जिन्होंने ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे तो मिसलीडिंग थे। पहले पेज पे एक लाइन लिखी हुई थी कि भाई यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शन, Okay. और जब वो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो बोले कि भाई 40 मिनट जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे यू कैन नॉट मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। तो इट वाज मिसलीडिंग, right? who's reading the instruction carefully, उसके लिए ज्यादा ड्यूबियस हो गया था, कैसे करें, क्या करें, यार क्या And होने what was वाला है actual? I mean, yeah. they weren't able to move, right? हाँ, ऑब्वियसली इट वाज सेक्शनल Yeah. टाइम लिमिट, या इट Section वाज time, सेक्शनल that's टाइम why. लिमिट। बट होता क्या है कि आप कुछ सोचने लगते हो कि यार अच्छा स्विच कर सकते हैं, मतलब पूरे 2 आवर्स में हमको पूरे सेक्शन मैनेज करने पड़ेंगे, राइट? Right. तो बच्चा कुछ और सोच थॉट में चले जाता है, तो वो जो है ना, उससे थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है बच्चे को, यार ये क्या हो गया। बट ऐसा हुआ नहीं, तो इट वाज मिसलीडिंग, जो नहीं होना इंदौर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना चाहिए इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है? देन क्यूए सेक्शन, एज आई टोल्ड यू कि डिफिकल्टी लेवल हायर था, ऐसा ज्यादातर बच्चों ने बोला। स्किप 3-4 क्वेश्चंस, फिर बाकी चीजें जिसके पास कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगी, वही 9-10 तक अटेम्प्ट कर सकता था। And DI set was, again, it was not calculation based, it was logic based, more toward conditional puzzle, you can say। कुछ आपको set of information दी है, उसके हिसाब से आपको क्रैक करना था। And verbal ability was easiest of all 3 sections, that is what Brindavan just said, and it was a fact। And weightage of arithmetic got reduced, or it was almost similar to what it was last year, so it was a backseat, arithmetic is taken as backseat as usual. So that is the highlight of the entire paper, Rahul. Okay. So now let's move to verbal ability also. I mean, there were a few things that need to be discussed. You have given me some points over here, Brinda ma'am. Please, if you can throw some light over here as well. So as already discussed, Rahul, the paper can be categorized as easy. This section can be categorized as easy to moderate. That's for one. Second cheese, IPM Indore हमेशा अपने पेपर के organization को लेके consistent रहा है, and they have followed this year. I mean, this was same this year. So जो उनके पेपर का structure है, जैसे पहले 2 question, पहले 2 RC passages ही होंगे, उस पे भी इस 12 क्वेश्चन, एंड देन वट एवर पैटर्न दे फॉलो वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली उन्होंने फॉलो किया। सो दैट वाज फन। अच्छा, उसके अलावा द अदर थिंग दैट वाज डिफरेंट इन दिस पेपर वाज जनरली इसमें इडियम्स पे बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आए हैं। द वन चेंज दैट दे इंट्रोड्यूस दिस ईयर, देयर वर प्रैक्टिकली नो इडियम्स, instead there were more phrasal verbs that were there. Yes, so this was the only change they introduced this year. Okay. So yeah, I mean, more or less it was similar like last year. However, there were some changes. Idioms got removed and phrasal verbs were introduced. Brinda ma'am is making this particular point. Now let's move to
overall mathematics segment or QA essay and QA MCQ segment? What were the highlights of these sections, sir? Yeah, Rahul, we are quite excited, right? Because a lot of students texted us, called us, met us, and said कि sir ये तो classroom की sheet के ही questions आ गए थे, right? या आपने जो one shot लिया था उसमें से questions आए हुए हैं, remainders के कुछ questions थे, factorial का summation था और divided by 15 पूछा था, तो it was taken in the one Sorry shot for only. interrupting you in between. एक दो क्योंकि आप ये चीज कह रहे हो. So we were taking live session. I should appreciate Brinda ma'am with a broken hand. She was running at that point of time also. So one of the student who was from boot camp, Jaipur, मुझे मैं ले रहा था तो they clearly told कि जयपुर में कराया हुआ सवाल as it is आ गया. In fact, अनिल सर आपके नाम से भी किसी एक स्टूडेंट ने कहा उस पॉइंट ऑफ टाइम में boot camp में कराया हुआ क्वेश्चन as it is आया. I was surprised कि ऐसा इंदौर में usually नहीं होता. And I asked them back also कि यार, are you sure? Because we need to क्रॉस वेरीफाई दैट पर्टिकुलर पार्ट कि इंदौर कभी भी फ्रेश क्वेश्चन लेके आता है, पुराना क्वेश्चन रिपीट नहीं करता या कहीं कंटेंट से नहीं उठाता, बट दैट्स कमेंडेबल. लाइक यू नो, एसजी टीम हैज डन अ कमेंडेबल जॉब. यस, प्लीज कंटिन्यू. आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू इन बिटवीन. इट्स ओके. एंड लाइक जो हाईलाइट में बोलूंगा कि लाइक लास्ट ईयर लाइक पीएनसी के 4 क्वेश्चंस आए थे एंड 2 क्वेश्चन वर प्रोबेबिलिटी. तो हाईलाइट में ये बोलूंगा कि यार स्टूडेंट्स नोटिस दैट वेरी पेक्युलरली कि यार पीएनसी को रिप्लेस कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने इस बार. तो सीजी हैज रिप्लेस पीएनसी. अगर वेटेज की बात करें तो इस बार 4-5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आ गए थे एंड 2 क्वेश्चन वर फ्रॉम दिस टॉपिक वाज इन एसे एंड 3 क्वेश्चन वर इन एमसीक्यू. तो दोनों ही सेक्शन में इसका बोलबाला था. बोलबाला मतलब ज्यादा इसी क्वेश्चंस थे अगर हम कंपेयर करें किसी और टॉपिक से. तो सीजी के 4 क्वेश्चंस करीब आए थे. अरिथमेटिक अराउंड प्योर अरिथमेटिक की बात करें तो 9 क्वेश्चंस. आज अलजेब्रा वाज गिवन हाई वेटेज एज यूजुअल, हर बार होता है एंड इट मेंटेन्ड द स्ट्रीक. इंदौर ने उस स्ट्रीक को मेंटेन किया एंड डीआई वाज डूएबल एंड इजी वंस यू स्टॉप देयर एंड थिंक कि इसको कैसे करना है. सिर्फ 2 मिनट आप रुकोगे, समझोगे, रीड करोगे, आपको लगेगा कि क्रैक होने वाला है, राइट? बस आपको ये सोच के नहीं जाना कि हमसे बनेगा. डाउट नहीं रख सकते आप अपने को. तो अगर माइंडसेट के साथ गए और डीआई नहीं करना है तो फिर वो छूटेगा, छोड़ोगे आप. अदरवाइज टाइम दिया तो बन ही जाएगा. वो इतना इजी था. एंड कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि आपको बोला शॉर्ट आंसर में 3 क्वेश्चन थे, डैम इजी थे. अगर आपने ढंग से भी तैयारी की है तो वो बनने ही बनने थे, सभी से बनने थे 3 से 4 क्वेश्चन. एंड 12 क्वेश्चन एमसीक्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लासेस अगर आपने की है तो आपसे बनने ही बनना है. तो 15 क्वेश्चन लाइक गिवन टू यू लाइक दिस. These are the highlights. All right, so now let's understand the section breakup as well. And ma'am, if you can throw some light over here as well. Section breakup क्या था availability में? Rahul, as I stated earlier, regular pattern था. So 12 questions approximately based on RC. हाँ जी. बाकी जो पूरा section था, so generally they give you questions based on vocab, generally in 3 sections: fillers, idioms and phrases, and confusing words. So 5 questions each, grammar 5 questions, para completion 5 questions, 5 to 6, and again same for para jumble 5 to 6 questions. So this was the breakup of this paper. Let's move to QA as well because ये बहुत important slide है guys. Please take a screenshot of this particular slide. या फिर अगर छूट जाए तो please back जाकर screenshot ले लीजिएगा because this is the breakup being given to me by maths team. Anil sir, please throw some light over here as well. Yeah, students, देखो ये तो सारी इनपुट्स हम लोगों ने आप ही लोगों से लिया है. आप लोगों से फीडबैक मिले हमको, टेक्स्ट में वर्बली कम्युनिकेट किया स्टूडेंट्स ने, राइट? कॉल पे, राइट? सो ये आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है क्या है. बट जो हम लोग को इनपुट्स मिले उसके बेसिस पे सर हमने ब्रेकअप दिया हुआ है और कपल ऑफ डेज यू विल गेट द रिस्पॉन्स शीट जहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा. आपने जो अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन राइट रॉन्ग और एक्चुअल आंसर जो है वो भी इंदौर आपको शेयर कर देगा. तो वहां तो एग्जैक्ट पता ही चल जाएगा. बट बेस्ड ऑन व्हाट इनपुट वी हैव गिवन वी हैव जस्ट सॉर्टेड आउट एंड ये कंबाइंड है. इट इज नॉट शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू अलग अलग हमने नहीं बताया. हमें कंबाइंड ही इन्फॉर्मेशन मिली है. तो उसके हिसाब से हम 45 क्वेश्चन का ब्रेकअप है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. अरिथमेटिक एज आई सेड 9 to 10 क्वेश्चन वर देयर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अराउंड 4 क्वेश्चंस. ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन कम था बट कुछ क्वेश्चन मिक्स थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, कुछ एक्सक्लूसिव थे. 2 to 3 क्वेश्चन आप बोल सकते हो ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन के. एंड मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी आया था, स्फीयर वाला. ओके, राइट? सेट थ्योरी के 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इस बार एक ही क्वेश्चन आया. ऐसा स्टूडेंट्स ने बोला. पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी मिला के 5 क्वेश्चन थे.
4 वाज डुएबल, 1 वाज प्रोबेबिलिटी का थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, बट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं था, वो नंबर स्टम्प के साथ क्लब होकर पूछा गया था, राइट? नंबर स्टम्प का क्वेश्चन बेसिकली था वो, इफ यू गुड एट नंबर्स यू चांसेस आर हाई दैट यू विल बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। एंड नंबर स्टम्प एज यूजुअल 4 क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी 4 थे, इस बार भी 4 है, वो एक फिक्स्ड उन्होंने रखा हुआ है। फंक्शंस 3, इक्वेशंस 3, इनइक्वालिटीज के 2 क्वेश्चन, प्रोग्रेशंस 2, लॉगरिथम्स 2, बाइनोमियल का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, एंड डेटा इंडिविजन का एक सेट 5 क्वेश्चंस का। दिस वाज द ब्रेकअप गाइस। All right, this is the seat breakup. So general 53, EWS 15, NCOBC 41, SC 11, SC 23, PWD 7. अब आपके फेवरेट स्लाइड पे जाने से पहले let's see how much role interview is going to play. So verbal ability easy जा रहा है. अगर इंदौर की बात की जाए 35% वेटेज है इंटरव्यूज का, अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग हमेशा कंट्रोल करते आए, हमको एटीएस के ऊपर भी वीडियोस बनाए जहां पे हमने आपसे कहा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दोनों सेगमेंट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. Despite that, we would always tell you that interviews are going to play a very, very significant role. आज से, if you think that you're going to get inside IIM Indore, then this must be your focus area. First of all, you must be brushing up your academics. Strongly brush up कर लो. आपके जो भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, खासकर वो सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है, that has to be tip of the tongue. नींद में भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपके पास आंसर होना चाहिए. उसके अलावा जीके, current affairs, geography, maps specifically, you should be looking into it. That particular part. HR script, SuperGrads के हर स्टूडेंट की प्रिपेयर्ड होगी. I can vouch for that. Despite that, अगर आपने नहीं बनाई अभी तक तो बना लीजिए. SuperGrads is soon going to come up with an interview preparation batch. We are going to launch that for you guys. That is going to give you an extra edge. And 101% IIM panelist, IFT panelist, XLRI panelist are going to take your interviews. IIM Indore students are going to guide you and बिल्कुल आपको हाथ पकड़ के इंदौर तक पहुंचाने वाले हैं. And what else should I say? After interviews, let's discuss the cutoffs. So a slide जिसके लिए आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो. नंबर आपके सामने है, ये जनरल के लिए, अपन कैटेगरी वाइज भी विल बी पुटिंग अप टू यू, बट बिफोर दैट हमारे सामने अभी अनिल सर है, वृंदा मैम है. ये कट ऑफ क्यों दिया सर? या राहुल, शॉर्ट आंसर में हम लोग 20 से 24 एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ. दैट मींस जैसे कि मैंने आपको कहा है कि यार गुड स्कोर तो थोड़ा सा हाई ही जाता है, राइट? नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 9 to 10 बोले हैं, राइट? विच कॉल्स फॉर अराउंड 36 मार्क्स अराउंड कोई बच्चा लाता है तो सेफ जोन पे होता है. बट कट ऑफ हमेशा ऐसा रहता है कि मिनिमम कट ऑफ तीनों सेक्शन में आपको लाना है. तीनों सेक्शन में जो कट ऑफ लाएगा वो शॉर्टलिस्ट होता है, राइट? सो इट इज लाइक 2024, क्योंकि दिस इज मिनिमम व्हाट वी एक्सपेक्टिंग. ये 4 क्वेश्चन का तो होना ही चाहिए. लास्ट ईयर भी जब पेपर इजी था, शॉर्ट आंसर इजी थे लास्ट ईयर ओवरऑल, तो उनके 20 कट ऑफ थे. दैट मीन्स 5 क्वेश्चन कोई बच्चा सही कर रहा है तो उन्होंने 20 रखा था. इस बार थोड़ा सा जब सभी लोग बोल रहे हैं कि यार शॉर्ट आंसर थोड़ा सा ऑन द टफर साइड है, राइट? सो इट शुड बी 20, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही डैम इजी थे, सबको करने ही चाहिए थे, तो वो 12-16 नंबर तो ऐसे ही हो रहे हैं, राइट? तो इट कुड बी 20, 24, एनीथिंग डिपेंड्स कि बाकी बच्चों ने कैसा अटेम्प्ट किया हुआ है. तो 20 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है. एंड एमसीक्यू या लास्ट ईयर वाज 43 जनरल कैटेगरी कट ऑफ था. इस बार बिकॉज ऑफ द डीआई, राइट? डीआई वाज रियली नो गेम चेंजर बेसिकली, है ना? जैसे कि मैं 2-3 बार इसको डिस्कस कर लिया हूँ कि डीआई बिल्कुल 20 नंबर आपके 10 मिनट में मिल रहे हैं आपको, ठीक है? 20 मार्क्स एकदम से मिल रहे हैं. तो बाकी फिर मैथ्स के लिए कितना है, लाइक मैथ्स आप करते हो, आपके पूरा आधा घंटा ऑलमोस्ट बचा है, तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक स्कोर कर सकते हो अगर डीआई आपने कर लिया. तो काफी बच्चे बोले कि डीआई अटेम्प्ट किया है बच्चों ने. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा ऑन हायर साइड जा सकता है लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में. 45 to 48 इज व्हाट माय टेक इज फॉर एमसीक्यू. All right. These are just expected cutoffs. They may rise as well. So we are telling you right away that these are just expected cutoffs. ठीक है? तो expectations बहुत मत रखना यहाँ पर. Let me ask it from Brinda ma'am as well कि what is your take on verbal ability, ma'am? अच्छा राहुल, यहाँ पर पेपर को इजी बोलने का एक रीजन ये भी हो सकता है. अगेन दिस इज द फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वाज देयर इन द पेपर. सो आरसी अगर बच्चे को आसान लगे हैं तो, या उसके ऑप्शंस बच्चे को आसान अगर लगे हैं तो दैट मीन्स बच्चे को हैंडल करना भी आ रहा था, क्योंकि 2 ऑप्शन इजी भी रूल आउट होते हैं. 2 ऑप्शन में चॉइस मतलब ट्रिक होता है जो आपको समझना पड़ता है.
अगेन सो लाइक आई सेड, बच्चों की बात मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। दे सेड मैम अगर आप पेपर को एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन, जैसे दे सेड मैम जो क्लास में प्रैक्टिस किया था, पर्सपेक्टिव डेवलप किया था, उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही डुएबल थे, जबकि वो काफी लॉन्ग थे पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन। सो पूरा पेपर अगर मैं उसे चंक्स में डिवाइड करूँ, आरसी दे फाउंड इजी, से पैरा जंबल जो बच्चों को सबसे ज्यादा ट्रिकी लगते हैं वो दे फाउंड दैट इजी, वोकैबुलरी बिकॉज ऑफ some strategies they found that section easy, plus grammar section they said concept pata tha so it was easy. So everything put together, 40 minutes में बच्चे अगर 38 से 42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं तो मिनिमम इतना कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि जाना चाहिए. So at least 126 to I have 130. one more perspective over here, and I would like to understand from you people as well, because we have seen one trend, and the trend was set by recent IPMAT Rohtak cutoffs. It has shot up. So एक चीज जो दिमाग में और आ रही है, आपने डेफिनेटली कट ऑफ्स को जो मायना रखा है यहाँ पर, वो पिछले साल को बेस बना के रखा हुआ है, एज वेल एज जो यहाँ पर एक जो चीज मेरे दिमाग में चल रही है, बिकॉज वी हैव बीन एनालाइजिंग द थिंग्स एट द बैक एंड आल्सो फ्रॉम द प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, वी हैव सीन दैट इंटेलिजेंट क्राउड हैज आल्सो इंक्रीज्ड. सो न सिर्फ 10 to 15% का कंपटीशन जरूर बढ़ा है. एक बैकएंड पे एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी मेरे पास कि 31,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है इस बार. सो पिछले मर्तबा 27,000 ने किया था, इस मर्तबा 31,000 ने किया है. एक तो वो कंपटीशन जो हर साल बढ़ती है 10 to 15% की, as well as intelligent crowd भी बढ़ा है. So can we give some percentage to that part as well? I mean, it is within that limit. Very live, very direct. But yeah, so क्या इससे ज्यादा expectations हो सकते हैं? So मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट क्राउड का नंबर बड़ा है. सो ये एक मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन होगा. आई एम नॉट कीपिंग फैकल्टीज ओवर हियर इन माइंड. उसमें या राहुल, उसमें क्या है कि जब अपन रोहतक को कंपेयर इससे इंदौर से कर नहीं सकते, बिकॉज उसमें 2 आवर्स का पूरा टाइम लिमिट होता है. बच्चा अपने फेवरेट एरिया को बहुत हाई ले जा सकता है और ओवरऑल कट ऑफ आराम से वो क्रैक कर सकता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई जेई का स्टूडेंट है, उसका मैथ्स बहुत चैंपियन टाइप का है वो, तो शायद क्यूए में तो वो 40 आराम से ले आएगा. जो अपन टफ बोल रहे हैं ना, वो 40 मार्क्स ऐसे ही ले आएगा. एमसीक्यू में 60 ले आएगा, आराम से ले आएगा. उसने नहीं भी पढ़ाई, महीने भर में भी पढ़ाई किया हो तो भी बट उसने शायद वर्बल में उतना ध्यान नहीं दे पाया बिकॉज मेंस कर रहा है या एडवांस कर रहा है. तो 130 बहुत हाई जैसे उनके लिए बहुत हाई हो गया. राइट, ठीक है. और कॉल किसको आएगा? कॉल आएगा जिसने तीनों को कट ऑफ मीट किया हो, 40 मिनट्स के अंदर ही अचीव किया हो. सो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है. तो इसलिए हम रोहतक को और इंदौर को बिल्कुल रख नहीं सकते ऑन द सेम लाइंस. तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिकल कट ऑफ हमने सोच समझ के रखे हैं. So it should be around. Yeah. Great points being made, and Anil sir is clearly clarifying it over here that that he has kept one very important logic in mind, that is Rohtak is not having sectional cutoffs versus Indore that's having the sectional cutoffs. All right, and these are the cutoffs which we have just kept it on the screen in front of you all based on last year cutoffs. जितना वेरिएशन था लास्ट ईयर, उसके बेसिस पे हमने कटऑफ्स को कैटेगरी वाइज रखा है. बट यहाँ पर ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं डेफिनेटली, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के जो गैप्स थे उसके बेसिस पे हमने कैटेगरी वाइज कटऑफ्स भी आपके सामने लेके आए. However, there may be variations over here. इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बिल्कुल, डेफिनेटली. Okay, let's move ahead. And something which is important, Anil sir, would you like to throw light on expected dates now? Yeah, what I like about like IPMAT and Indore, right? At least they're transparent and they just come up with the response sheet जहाँ पे बच्चा क्वेश्चन पेपर देख लेता है and अपना आंसर रिस्पॉन्स जो उसने मार्क किया है, and they got the option to raise the objection also, है ना. They can, अगर उनको लगता है कि आंसर गलत है, they can like गो फॉर दिस ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. तो वो एक अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, तो इट्स गुड थिंग. तो जून एंड, दैट इज 2 weeks फ्रॉम नाउ, दे विल बी कमिंग अप within 2 weeks they'll be coming with the response sheet. बच्चे चेक कर सकते हैं अपना स्कोर, राइट रॉन्ग कितना है, नेट स्कोर तीनों सेक्शन में बच्चे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, बेस्ड ऑन द आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट. ठीक है. एंड उसके जस्ट like 3-4 days they'll come up with the shortlist डिक्लेयर कर देंगे वो. तो जून एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए. All right, so these are the important dates, and finally something which is very important, that the hard work which we all did
for almost 2 years. बहुत सारे बच्चे हमसे 2 साल से जुड़े हैं, उनके साथ बहुत इमोशनल बॉन्डेज भी होता है. एंड टुडे आज सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मैंने व्हेन आई वाज सीइंग कि जो फैकल्टीज स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो जो 2 साल का बच्चा था वो सबसे ज्यादा अटैच था, बार बार कॉल आ रहे हैं. फिर 1 साल का बच्चा भी, इनफैक्ट सारे बच्चों के साथ अटैचमेंट फैकल्टी का था. एंड एक इट वाज एन इमोशनल डे फिल्ड विद इमोशंस. And not only with emotions, I could see that, the entire team was on the toes. मैंने भी बात भी कही कि वृंदा मैम शायद थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो आप दिखा पाए that she's having a broken, and despite that she's running to Indore center. Anil sir Commendable, ma'am. continuously on calls. Vrinda ma'am, आज शायद पहला दिन होगा जब अनिल सर ने मेरे कॉल से बच्चों से बात कर रहा हूँ. I'm on call. And finally this PPT is coming out in front of you all. So, team has really done a wonderful job. Congratulations, Anil sir, and your entire team for that particular part. And thanks. जो भी हो, I think एक चीज है, जितना स्टूडेंट सुपरग्रैड से जुड़ा है, हम हमेशा कहते हैं, I'll end it with this particular note. We do not prepare you for IPMAT Indore, guys. We do not prepare you for IPMAT Rohtak. We prepare you for life. उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Aptitude as well as interviews are going to help you improve your intellect. They are going to help you face the further exams in the future, like CAT, job interviews. In fact, job में जो 3-4 rounds आते हैं, and interviews भी उसी चीज के लिए होते हैं. So SuperGrads prepares you for life. आप बहुत कुछ सीख कर SuperGrads से जा रहे हैं. So best of luck for that particular part. Thank you, Vrinda ma'am and Anil sir, for joining us for this wonderful session. Thank you, Rahul. Thank you. Thank you. All the best, guys. All the best for interviews and all. Start preparing interviews, guys.